आ गया ठीक है। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता भीष्णं अमरकृत्य शारणं प्रबुद्धं लोकं जीवनं प्रणय प्रमत्यागदीपं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री ठाकुर परमाराध्या जगजन शिष बॉर्मा परम पूज्यपाद पितृदेव श्री बॉर्दा परम पूज्यपाद श्री श्री दादा परम पूज्यपाद आचार्य देव पुण्य भवाइदा पुण्य अविंदा समस्त इष्ट प्रेरातु चिन्मय कोटि कोटि प्रणाम। এখানে আজকে এই প্রভাত বেলা মর্নিং আজকে উড়িষ্যা ভুবনেশ্বর সৎসঙ্গ থেকে যুক্ত যারা ভক্তমণ্ডলী আছেন প্রত্যেককে আমি জানাই আমার সশ্রদ্ধর আনন্দিত জয়গুরু। বড়দেরকে প্রণাম জানাই, ছোটদেরকে ভালোবাসা জানাই, স্নেহাশীষ জানাই। আজকে আপনারা বিশেষ দিনে আমাকে আজকে এই আপনার অনলাইন ভার্চুয়াল এই সৎসঙ্গ ভুবনেশ্বর থেকে কিছু বলার সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য আমি প্রত্যেকে নিজের আভার জানাই। আমার তো কিছু বলার কিছু ক্ষমতা নেই, কিন্তু দয়া করে আপনারা মাঝে মাঝে কিছু বলেন, কিছু বলার জন্য তাই বলি। আজকে আলোচ্য বিষয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা। আমরা আমার স্মৃতিতে যা আছে, আমার মেমোরিতে যা আছে, আমি তাই কিছু বলার চেষ্টা করব। আমি ছোটবেলা থেকে দুর্গাপুর থেকে যখন দেওঘর আসতাম, আমার বাবা শ্রী সাধনদা মানে হাতে দিয়ে কিছু পাঠাতেন আচার্য দাদাকে দেওয়ার জন্য, কিছু না কিছু পাঠাতেন আর বলতেন তুমি সোজা গিয়ে দেবে, সোজা গিয়ে দেবে। আমি এইভাবে আচার্যদের সান্নিধ্যে অনেক প্রায় 30 বছর 40 বছর থেকে আছি, এইভাবেই যোগাযোগ হয়েছে। আচার্য দাদাকে কোনোদিন আমি তার কাছে যাওয়ার সময় কোনো ভয় পেতাম না। বাবা বলতেন একদম যাবি, যা কথা আছে তাই বলবি। আমার প্রথম যখন সাক্ষাৎ হয় আচার্য দাদার সঙ্গে, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা এখন সশরীরে নাই, কিন্তু উনি সেন্ট ফ্রম দি হেভেন, উনি তো ওনার আবির্ভাব হয়েছে, উনি ঠাকুর তাকে দেবদূত হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমাদের জীবনে যেগুলো মানুষ ভুল ত্রুটি করতে থাকে তার সঙ্গ লাভ করতে করতে সেই ঠাকুর পথে এগিয়ে যাবে। আমার একটা কথা মনে পড়ে, আমি যখন ঠাকুরের একটা কথা প্রসঙ্গে পড়ছিলাম, একবার একজন লয়ার শ্রী বলদেব সাহায় উনি এসেছিলেন শ্রী শ্রী বর্দার। ওই সময় কিছু কেস মোকদ্দমা ছিল, এখানে আশ্রমে অনেক লয়ারকে ডাকা হতো। সেই সময় একজন খুব ভালো লয়ার বলদেব সাহেব পাটনা থেকে এসেছিলেন। ঠাকুর কিভাবে সে ইগোইস্টিক একটা লয়ার, তাকে একটা কথা বলে কিডন্যাপার অফ দি সোল তো পুরুষোত্তম জানেন এই আমার সন্তান মধ্যে কি কি কমপ্লেক্সেস প্লে করছে। ঠাকুর একটা কথা বললেন, বলদেব সাহেবকে বলদেব সাহেব না বলে আপনি কি কৃষ্ণের দাদা বলদেব, এরকম বললেন, আপনি কি কৃষ্ণের দাদা বলদেব। এই কথা শুনেই সে বলদেব সাহেব সে এত আপ্লুপ্ত হয়ে গেল, এত ইমোশনাল হয়ে গেল কি আজ পর্যন্ত তাকে এইভাবে কেউ বলেনি। আর ঠাকুর তো পরম পিতা, তার বাবার স্নেহের পরশ পেয়ে বলদেব সহায় তাকে খুব ভালো শ্রদ্ধা করতেন। তারপরে উইদাউট ফিস কেস মোকদ্দমা লড়াই করতেন। ঠাকুর কিন্তু দেওয়ার অনেক চেষ্টা করতেন, উনি নেওয়ার চেষ্টা করতেন, শুধু একটা কথাতেই। সেই বলদেব সাহেবকে ঠাকুর বললেন, চন্দ্রেশ্বর শর্মা দা লয়ার এসপিআর দীক্ষাত কর্মী, তাকে যাও স্টেশনে ছেড়ে আসো। সেই বলদেব সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে যখন চন্দ্রেশ্বর শর্মা ঠাকুর কাছে আসলেন, তখন ঠাকুর বললেন কি বললো বলদেব সাহেব, কি বললো? তখন চন্দ্রেশ্বর শর্মা বললেন কি বলদেব সাহেবকে ঠাকুর আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে, আশ্রম খুব পছন্দ হয়েছে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা তার সন্দেহ যে ঠাকুর যখন থাকবেন না তখন এই আশ্রমটা কি করে চলবে। এই কথা শুনে আমি ঠাকুর তুই কি বললি বলে আমি বললাম ঠাকুরের অনেকগুলো সাহিত্য আছে, গদ্য আছে, পদ্য আছে, তার মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গ
সত্যানুসরণ, কথা প্রসঙ্গ, নানা প্রসঙ্গ, দ্বীপরক্ষী, নানা রকম বই আছে। এই এই সব মাধ্যমে মানুষ ঠাকুরকে পেয়ে পাওয়ার চেষ্টা করবে, ঠাকুর পথে এগিয়ে চলবে। ঠাকুরের এই উত্তর শুনে মানে খুব আনন্দ পেলেন না, গম্ভীর হয়ে গেলেন। তো ঠাকুর বললেন, জানিস আমি হলে কি বলতাম? আমি বলতাম ঠাকুর না থাকলে, সরাসরি না থাকলে, ঠাকুর বলে কেউ যদি থাকে সেই সময়, ঠাকুর বলে মানে যার মধ্যে ঠাকুরত্ব জীবন্ত হয়ে জাগ্রত হয়ে তার মধ্যে মূর্ত রূপ ধরে রেখেছেন, তাকে যদি মানুষ ভালোবাসে, তার প্রতি যদি কনসেন্ট্রিক থাকে, তাহলে ঠিক আবার সে ঠাকুর পথে এগিয়ে যাবে। ঠাকুর বলেন আমার লিভিং ইমপ্রেশন যার মধ্যে থাকে। সবাই আমরা জানি তখন শ্রী বড়দা, উনি সান বাই বার্থ না সান বাই কালচার। ঠাকুর পরিবারে তো কেউ শরিক নাই, কিন্তু ঠাকুর পরিবারে জন্ম নেবার একটা মহান আত্মা প্রয়োজনীয় আছে। আবার তাকেও সেই কালচার করে গিয়ে ঠাকুরের সাধনাতে ধরতে হবে। শ্রী বড়দা সেই সময় পুরো এই সৎসঙ্গ আন্দোলনকে খুব নিজের মানে কাঁধে শোল্ডারে গ্রিপ করে মানুষকে ঠাকুর পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমার কথা মনে পড়ে, শ্রী বড়দার কাছে একজন ডিস্ট্রিক্ট দাদা এসেছিলেন, উনি বয়স্ক। ঠাকুরকে বড়দাকে প্রণাম করতে গিয়ে বড়দা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, এই তোমার ছাতা কই, তোমার ছাতা কই? ওই ঋত্বিক দাদা বললেন, দেখেন আমরা সবাই তো একসময় বয়স্ক হয়, অনেক সময় আমাদের নানা রকম ভুল ধারণা হয়, ভুল ভ্রান্তি হয়। ওই ঋত্বিক দাদা বললেন, শ্রী বড়দা আমার মনে থাকে না, ছাতা হারিয়ে ফেলি। শ্রী বড়দা জোর থেকে জোর করে একটা ধমক দিলেন, অধুরশালা, ঠাকুরের দীক্ষাদাতা কর্মী, ঠাকুরের কাজ করতে বেরিয়েছে, একটা ছাতার দায়িত্ব নিতে পারে না, তাহলে এই আন্দোলনের সৎসঙ্গ জগতে কি করে মানুষের দায়িত্ব নেবে? শ্রী বড়দার যে বলার যে রকমটা, তার মধ্যে এত ভালোবাসা। সেই ঋত্বিক দাদা এমন নক হলেন, ঠোকর পেলেন, তারপরে উনি আজ পর্যন্ত কোনোদিন ছাতা হারানোনি, আর সবসময় ছাতা নিয়ে চলতেন। আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, এই যে ঠাকুর আচার্য পরম্পরা, শ্রী বড়দা, শ্রী বড়দা এইভাবে ওই ঋত্বিক দাদাকে যখন নক করলেন, তো সেই ঋত্বিক দাদার মধ্যে একটা ট্রান্সফরমেশন হলো, একটা ট্রানজিশন হলো। সে কোনোদিন পেন হারাতো না, কোনোদিন ছাতা হারাতো না। কেন? বইতে লেখা নেই, সত্যান্বেষণ রোজ উনি পড়তেন, কথা প্রসঙ্গ রোজ পড়তেন, আলোচনা প্রসঙ্গ পড়তেন, যাজন করতেন, কিন্তু এই বোধটা ছিল না। এই বোধটা আচার্য দেব তখন শ্রী বড়দা ছিলেন, তিনি সেভাবে সেই জাগ্রত করে সেই মানুষটাকে দায়িত্বশীল করে তুললেন। ঠাকুর কাছে একজন এসছেন, একজন দাদা, তার সুগার কন্ট্রোল হচ্ছে না। এখন সুগার কন্ট্রোল হচ্ছে না, ঠাকুর কাছে সে উনি সমস্যার কিছু নিবেদন করলেন, ঠাকুর কিছু বললেন না। ঠাকুর বললেন, তুমি মিষ্টি খাওয়াতে পারো? উনি খুব খুশি হলেন, বলে আমি তো খাওয়াতে পারি। উনি মিষ্টি আনলেন। ঠাকুর সেই সময় বিশ্রাম ঘরে চলে গেলেন। উনি প্রত্যেক মানুষকে যখন বললেন ননি যাচ্ছে, উনি কি করবো, সবাইকে বলেছেন খাওয়াতে। প্রত্যেক মানুষকে মিষ্টি খাওয়ানো হয়েছে। এই খাওয়াতে খাওয়াতে সেই ভদ্রলোক যার সুগার, তার জন্য मिष्टी बचा ही नहीं, उसके लिए बचा ही नहीं, वो मिठाई नहीं रहा, नहीं बचा। अंत में लोग पूछे कि आपको मिठाई, आपको तो मीठा बहुत पसंद है, आप मीठा खाए क्यों नहीं? बोले नहीं 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 नहीं, आज इतने लोग को ठाकुर के कहने पर सब मिठाई खाए, मुझे आनंद है। देखें उन्हीं मिष्टी खाবার লোভ, কিন্তু সেই লোভটা কিভাবে ডাইলুট হয়ে গেল অন্যকে খাইয়ে, উনি তখন বুঝতে পারলেন না। তখন আচার্যদেব দাদা, তখন আচার্য উনি ছিলেন না, ওনাকে সবাই রেফারেন্ট অশোক দা বলে ডাকতো। উনি সেই পথে যাচ্ছিলেন, তখন ওই দাদা, উনি ওনার নাম ছিল ননিদা, যে ওই সুগারের যে সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন। উনি আচার্য, উনি ওই সময় দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন কি, আচ্ছা বলেন তো, আমি তো ঠাকুর কাছে একটা সমস্যা নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু ঠাকুর তো আমার সমস্যার কিছু কথা বলেননি, বলেন সবাইকে মিষ্টি খাইয়ে দাও। দাদা হেসে বললেন, এইটাই তো ট্রিটমেন্ট। দেখেন তখন
দাদা আচার্য হননি, কিন্তু আচার্য প্রতিভু, তার মধ্যে ঠাকুর তো জীবন্ত হয়ে আছে। তার প্রত্যেকটি আচরণে ঠাকুরের মূর্ত ভাবটা ধরা যায়। সেই আচার্য দাদা তখন বললেন, আপনি বুঝলেন না ঠাকুর কি ইশারা করলেন? আপনার সুগার কন্ট্রোল করার কায়দাটাই হচ্ছে কি, যেভাবে মা তার ছেলেকে খাইয়ে তৃপ্ত হয়, তার ছেলেকে খাইए তার মনটা आनंद उठे फूटे उठे, तेरकम ही आपको जब मिठाई खाने का मन करेगा, आप इतने इतने लोगों को मिठाई बांट देंगे, देखेंगे आपका मन वो माँ जैसा तृप्त हो जाएगा और आपको फिर वो शुगर तंग में नहीं करेगा। इस तरह से ब्लड शुगर कंट्रोल करने की बात है। এই কথাটা যখন আমি শুনলাম, আমি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার আজকে যে আলোচ্য বিষয় আপনারা দিয়েছেন, আমার স্মৃতিতে অনেকগুলো কথা আছে। আমি এই জন্য তুললাম কি, আচার্য পরম্পরা, আচার্য যিনি, তিনি কিভাবে মানুষকে তার প্রত্যেকটি ত্রুটিটা তাকে ধরিয়ে দেন। তার এত ভালোবাসা, তার এত স্নেহ, যে মানুষ নিজে তো ত্রুটি ধরতে পারছে না, শত যতই যাজন করুক না কেন। ঠাকুর সবসময় বললেন, বি কনসেন্ট্রেড টু লিভিং আইডিয়াল। যে সময় যে लिविंग যার মধ্যে ঠাকুরকে ফিল করবেন, जिनमें ठाकुर को आप महसूस करेंगे, उनके प्रति अगर भालोबासा नहीं होगा तो आप लाख किताब और पढ़ ले, आप उस ईश्वर के गंतव्य की ओर नहीं जा पाएंगे। हम लोग तो मनुष्य योनि में है, प्रत्येक मुहूर्त में भूल करने का एक प्रवणता है, त्रुटि करते ही रहते हैं। लेकिन हम लोग परम भाग्यवान हैं, हम लोग उस समय श्री श्री बौड़दा जी के देहावसान के बाद आचार्य देव दादा के रूप में फिर ठाकुर पद पर चलने के लिए एक प्रेरित पुरस्कार सानिध्य मिला। मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था, तो चूंकि मेरे पिताजी के माध्यम से आचार्य देव दादा का सानिध्य लाभ होते रहा, अचानक आचार्य देव दादा एक दिन कहते हैं, देखो तो इस प्लांट का कोई इसका आता पता लगा सकते हो? एक प्लांट को लेकर के हम सब डिस्कस करने लगे। मुझे लगा कि मैं एक प्लांट का इतना चीज कैसे इंफॉर्मेशन लूंगा, कहां से लूंगा, लेकिन परम पूज्यपाद से दादा का स्नेह और लगा कि वो जब बोले हैं तो मुझे प्रयास करना ही होगा। देखिए, ये मैं क्यों उस प्लांट का ऑरिजिन इंसर्शन जानूंगा, लेकिन श्री श्री दादा वो ये हमको लगता है कि मेरे ऊपर दया करके, मेरे को एक्टिव करने का एक दया करके एक उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं तुरंत उस प्लांट को लेकर के सोचने लगा। देखिए, when there is will there is way। दादा का आशीर्वाद मिला तो इसका मतलब कार्य सिद्ध होगा, लेकिन आपका कृति संवेग कैसा है, आपका एडहेरेंस कैसा, आपका एलिजेंस कैसा है, वो आपको दया करके उस प्रति झोंकना चाहते। जैसे दादा का वो आदेश लेकर के मैं जब गया, तो देखिए संजोग से मेरे पेशेंट थे डाबर ग्राम के ही एक साइंटिस्ट, देवघर में उसमें डाबर ग्राम काफी एक्टिव फॉर्मेट था। वो डाबर ग्राम में मैं उस साइंटिस्ट को मैंने कॉल किया, वो बगल में रहते थे। बोले दादा, ये प्लांट का मुझे सब कुछ चाहिए और आज ही चाहिए। वो बोले शाम तक मिला दूंगा। और विश्वास करिए, उस प्लांट के बारे में, उसका क्या नाम है, बॉटनिकल नाम क्या है, उसका घरेलू नाम क्या है, रीजनल नाम क्या है, उसका लीफ क्या है, स्टेम क्या है, फ्लावर क्या है, उसका क्या यूटिलिटी है, क्या मेडिसिन होता है, टोटल इन डिटेल्स। शाम में परम पूज्यपाद श्री दादा को जब मैं दिया, तो दादा इतना खुश होकर के बोले, वाह दारुण काज, कोथा থেকে করলি? बोले आपका आशीर्वाद था, मेरा पेशेंट थे वो, उन्हीं के पास जाकर सारा डिटेल लिया। ये मेरा परम पूज्यपाद श्री श्री दादा का पहला मेरे ऊपर जो आशीर्वाद मिला, जिसको मैं कोशिश किया और वो हो गया। वो उस दिन से मैं आचार्य दादा का नियमित उनके, आप लोग अगर नाट मंडप पे आते, दादा जहां बैठते थे उस जगह पर एक बगल में हम डॉक्टर गुरु डॉक्टर सपन विश्वास बैठा करते थे। आचार्य देव दादा एक बार उस जहां आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव पुण्य बाबा बैठते हैं चाय वाली दुकान में, वहां पर बेंच पर आचार्य दादा बैठे हुए थे।
और मैं और मेरा बड़ा भाई पैंट शर्ट, मैं उसमें पैंट शर्ट में जाया करता था। आचार्य देव दादा, वो सेनापति था और बहुत लोग थे, बोले कि धोती ले आओ, 2 जोड़ा धोती ले आओ, 1 जोड़ा धोती ले आओ। और मैं वो परम सौभाग्य का अधिकारी हूँ, शायद मेरे ऊपर उनकी दया की जरूरत थी। आचार्य देव दादा अभी तो वर्तमान श्री दादा है पूज्यपाद, शरीर नहीं है, लेकिन वो अभी हम लोग के बीच ही है और हम लोग के प्रत्येक गतिविधि को वो गाइड करेंगे। उनका इंस्पिरेशन हम लोग महसूस करेंगे अगर हम प्रॉपरली जजन जाजन स्मृति और वर्तमान आचार्य देव पुण्य बाबा के सानिध्य में अगर हम निरंतर उस पथ पर चलेंगे तो हमारे परम पूज्य दादा को हमेशा महसूस करेंगे। वो धोती ला करके मेरे शरीर में वो धोती लपेट करके वो धोती पहनाए और बोले ऐसे पहनोगे, ऐसे गांठ दोगे तो कभी धोती तुम्हारा नहीं खुलेगा, तुम दौड़ पाओगे। देखिए, ये धोती पहनाना और ये पहनाना उनकी मंशा नहीं है। उनकी मंशा है कि कैसे ठाकुर के पथ पर ये बच्चा लोग चले और वो दया करके विशेष उस दिन हम पर कोई ग्रह होगा, कोई संकट होगा, हम लोग को पता नहीं होता है। श्री दादा का पहला वो धोती पहनाने का जो स्पर्श मिला, जो प्रेम मिला, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि आज का विषय ही है परम पूज्य श्री दादा। उसके बाद ये जब जीवन पथ पर हम लोग चलते रहे, आचार्य देव दादा हमेशा पूछते थे तू की खास रे, केमन खास, परोठा खास, मेरा डेली का डाइट चार्ट लेते थे। कभी कभी मुझे प्रिंस भी बुलाया करते थे। ये उनकी दया थी, अपार करुणा। मैं एक छोटा सा बात बताना चाह रहा हूं। मैं तो एक छारा, एक युवक, अब तो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। मैं निरंतर दादा के पास जब जाता था तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूं, मेरा क्या दायित्व मुझे नहीं पता रहता था। मैं समझता था कि मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, आचार्य देव दादा का संग करता हूँ, इतना ही बहुत मेरे अपने ऊपर था। एक दिन की बात है, मैं घटना को बराबर बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी और उस बरसात के समय में एक छोटा सा छाता लेकर के, मैं गाड़ी में छोटा सा छाता रखता हूँ, तो छाता लेकर मैं उतरा तो मेरे साथ सनातन भाई भी थे जो आनंद बाजार को देख करते हैं। सनातन भाई और मैं उस छाता में आधा आधा भींग करके आचार्य दादा उसमें बैठे थे। नाट मंडप में जाके प्रणाम करने के लिए जा रहा था। दादा का पैनी दृष्टि, दादा का नजर दूर से ही मेरे ऊपर, तो दूर से ही गेट पर कौन आता जाता सब उनको दादा देखते हैं। हम लोग को देख रहे हैं, दादा बहुत गौर से हम लोग को देख रहे हैं। और दादा के पास जब मैं प्रणाम करने के लिए झुका, अभी प्रणाम कर ही रहा था कि दादा दूर से ही बड़ा बड़ा आंख खोल कर बोलते हैं तू एकेबारे नॉनसेंस चले, एकेबारे नॉनसेंस चले। अब वहां पर नाट मंडप में बहुत विशिष्ट लोग बैठे हुए थे और मुझे भी बड़ा एक ये रहता था कि दादा हमको बहुत प्यार करते हैं। आज अचानक इतना बड़ा धमक के साथ दादा हमको हमको इतना कड़ा शब्द में बोल रहे हैं। मैं क्या गलती कर दिया, मैं क्या गुनाह कर दिया, मैं क्या भूल कर दिया। और मन में ये बैकग्राउंड में चलने लगा और लज्जा भी अब बहुत होने लगा कि अगल बगल के लोग क्या सोचेंगे कि मधुमदा भी क्या गलती की, दादा को डांटना पड़ रहा है। लेकिन मेरा मेरा मन, अंतर का मन कह रहा था आचार्य देव मुझे डांट नहीं सकते हैं। माँ जब बच्चे को डांटती है तो माँ के आंख के गुस्से के पीछे माँ का असीम प्रेम, अनंत प्रेम का जो सागर है माँ, उसी तरह आचार्य दादा का वो बड़ा बड़ा आंख के पीछे जो मेरे प्रति जो प्रेम था वो एकदम झलक रहा था। मैं उनके उस गुस्सा में भी उनके पीछे का मुस्कुराहट देख रहा था। फिर मैं थोड़ा सा जब चेतन हुआ तो मेरा हाथ जोड़ के बोला आगे আমি জানি না আমার কি ভুল হলো। आचार्य दादा कहते हैं, देखिए सत्यानुसरण में हम लोग बराबर ये पढ़ते हैं, पढ़ते आए हैं बराबर, लेकिन कभी इसका बोध नहीं हुआ। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम अपने परिवार, देश एवं देश के वर्तमान एवं भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। अब मैं
मैं क्या हूं, मेरा नाम तो मधुप है, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं उनका पुत्र हूं, मुझे आज तक यही बोझ था। लेकिन श्री श्री दादा के श्रीमुख से उस दिन जो डांट का जो फटकार था, उसके पीछे जो प्रेम का इजहार था, और क्या इशारा था, कह रहे थे कि तुम एक छोटा सा छाता में, हम तुमको देख रहे हो। देखिए दादा कहां से हम लोग को वॉच कर रहे हैं कि तुम एक छोटा सा छाता में इस बरसात में भीग करके आ रहे हो, तुम्हारा शरीर भीग रहा है, तुम भीग करके जब बीमार पड़ जाओगे, तुम रोगी हो जाओगे, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, तब तुम क्या रोगी देख पाओगे? तुम ठहरे एक डॉक्टर आदमी, तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम जितने रोगी को देखते हो, तुम्हारे पास जितने जितने रोगी आएंगे वो तुम्हारे इलाज से वंचित हो जाएंगे, और अगर तुम देखते भी हो तो तुम रोग को संक्रामित कर दोगे। उनने बाचे नीचे बाचे उन धर्म बोले जाने, ये दूसरे को बचाना है, अपने बचना है। अच्छा तो दादा कह रहे कि तुम रोगी हो जाओगे, तुम डॉक्टर हो के अगर रोगी हो जाओगे, कैसे रोगी को देखोगे? तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम एक पति हो, तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम एक पुत्र हो, तुम्हारे पिता परेशान होंगे, तुम्हारी पत्नी परेशान होंगे, तुम्हारा माता परेशान होंगे। मैं भौचक्का रह गया कि इतना दिन से सत्यानुसन की बात पढ़ता था, और उस दिन आचार्य देव दादा के श्रीमुख से मेरे ऊपर क्या दायित्व है परमपिता का, उसका बोध उन्होंने झकझोर करके जागृत कर दिया। ये दया करके उन्होंने हम पर दया की, और इतना ही नहीं, बोले कि जब इस तरह का बारिश हो, देखिए क्या प्रेम है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं जब इस तरह का बारिश हो तो तुम अपनी गाड़ी सीधा नाट मंडप में लाके खड़ा कर देना। देखिए कितनी उनकी करुणा है कि मेरे को मेरे गाड़ी सहित बोले कि नाट मंडप में ले आना। ये तो पिता का जो स्नेह है वो मेरे अंदर क्या है, मैं तो अधम प्राणी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन उनका प्रेम का जो जो ये जो इजहार है, मैं उसको भूल नहीं सकता हूं। मैं आपके समक्ष मेरे आंख से थोड़ा इमोशनल हूं, दादा नहीं है, लेकिन बोलते बोलते फिर भी आ चुकी मुझे पुण्य बाबा दा का वो बात याद आता है आचार्य के रूप में आज वर्तमान में। वो उस दिन जिस दिन सत्संग हुआ, उनका एक ही शब्द बहुत हम लोग को नॉक किया। नॉकिंग क्या किया कि शोक विकर्षण ले आता है, शोक में आकर्षण नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे वो घटना याद पड़ रही है कि जब महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु का वध हो जाता है और अर्जुन शोकाकुल हो जाते हैं, इतने शोक में विभोर हो जाते हैं कि महाभारत का युद्ध त्याग करने का वो ठान लेते हैं। श्री कृष्ण उसमें उस अर्जुन के अंदर उस भागवत सत्ता को जागृत किए हैं, और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी सबको पता है कि हर समय तुम भी आओ, मैं भी आऊं, मुझे तुम्हें याद नहीं, मुझे याद है। और इतना ईश्वरीय संवाद से अर्जुन को पुनः जागृत किए हैं कि अर्जुन पुनः उस महाभारत में युद्ध में युक्त होकर के एक एक श्रीकृष्ण के जो कहते हैं वार्ता अपने जो कर्मवीर होकर के उस युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करवाए। ये जो अर्जुन का शोकाकुल अवस्था से पुनः भागवत सत्ता को जागृत करना, मैं उस दिन हमारा आचार्य देव बाबा दा के श्रीमुख से जो सुने कि शोक विकर्षण ले आता है, शोक में आकर्षण नहीं है, सत्ता सच्चिदानंद में है, पुनः उस शोक से उबरने का समय आ गया है। तो मुझे वो श्री श्री दादा के श्रीमुख से वो जो मन के अंदर का जो एक ठाकुर के प्रति जो प्रेम है, उन्होंने जो झकझोर करके कहा कि परमपिता का इतना बड़ा दायित्व है कि परमपिता के काम करने के लिए शरीर को ठीक रखना होगा। परम पूज्य बात श्री दादा हम लोग बैठे हुए हैं, एक बहुत ही विशिष्ट लोग, आप लोग सब जानते हो कि मैं नाम नहीं लूंगा, श्री दादा को प्रणाम नहीं करके दूर में बैठे हुए हैं और बड़ा रो रहे हैं, शोकाकुल है। श्री दादा उनको अपने पास बुलाते हैं। उनका एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बेटी का मृत्यु हो गया था।
किसी के परिवार में अगर पत्नी चली जाए, बेटी चली जाए, तो उससे बड़ा शोक क्या हो सकता है। शिष्य दादा एक ही शब्द उनको बुलाए, प्रेम से बुलाए और कहे, देखो मेरा नाम अशोक है, मेरा नाम अशोक है। मैं कोशिश करता हूं सबके शोक को दूर करने का। परम पिता के काम में लगे रहो, सत्ता सच्चिदानंद में है। परम पिता के काम में लगने से ये जितना भी शोक है सब कुछ उनमें विलीन हो जाता है और पुनः जीवन आनंद के पथ पर चल पड़ता है। ये शिष्य दादा के मुख से हम उस दिन बैठे हुए थे, उसमें सुने। बैठे हुए हैं दादा के पास, हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं। अचानक दादा अपने पॉकेट से एक चुटकी निकालते हैं, एक कागज का टुकड़ा निकालते हैं। आप सोच सकते हैं दादा क्या उस कागज के टुकड़ा को पढ़ नहीं सकते हैं? बिल्कुल। उसमें एक हिंदी गाने का बोल लिखा हुआ था। हिंदी गाने का बोल क्या था? मुझे बोले कि मधु पढ़ो। दादा सब जानते हैं, लेकिन उनका संदेश, उनका आशीर्वाद क्या था, वो मैं आपको सुना रहा हूं। उस कागज के चुटकी में एक हिंदी सिनेमा का गान लिखा हुआ था। क्या गान लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि मुझे तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैंने मुझे तुमसे प्यार कितना, मैंने हम ठाकुर को कितना प्यार करते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ठाकुर हमारे जीवन के जैसे ये श्वास प्रश्वास चल रहा है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। ठाकुर के बगैर भी हम नहीं रह सकते हैं। ठाकुर के प्रति मेरा प्रेम ऐसा ही जागृत होना चाहिए। आचार्य दादा का क्या अद्भुत इशारा है। क्या वो पढ़ना नहीं जानते हैं? बिल्कुल सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे को पढ़वा करके हम लोग के बीच एकदम क्लियर कट मैसेज कि ठाकुर से प्रेम करो, ठाकुर को ही लेके जीवन को चलाओ, ठाकुर को ही लेके जीवन को सब कुछ साधना करो, मंगल का अधिकारी हो गए। शिष्य दादा के मुख से वो जो गाने का बोल था उसका मकसद यही था। एक दिन बैठे हुए हैं शिष्य दादा के समक्ष, हम और डॉक्टर गुरु कृति मंडल। अचानक शिष्य दादा पूछते हैं कि तुम अपनी बहू को साड़ी ला के देते हो, बढ़िया बढ़िया साड़ी ला के देते हो? বাংলা बोल है, বউ ভালো ভালো শাড়ি দিস, বউকে গয়না দিস, ছেলেকে কাপড় দিস, জামা দিস ভালো ভালো। তো আমি ভাবলাম আসলে দাদা এভাবে আমাদেরকে মানে কি বলছেন, এই সাংসারিক কথা কেন বলছেন এটা বোঝা যাচ্ছে না। আমরা লজ্জায় মুখ নিচে করে আছি, বউকে তো কাপড় দিই। দাদা জিজ্ঞেস করছেন ভালো ভালো কাপড় দিস, এটাও মানে মনের মধ্যে তো শুধু মাথা নাড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু বলছি না, লজ্জা পাচ্ছি। तब से दादा कहते हैं, देखिए शिष्य दादा आचार्य के रूप में अपने आचरण के माध्यम से प्रति मुहूर्त ठाकुर को कैसे प्यार करना है, ठाकुर को लेके कैसे चलना है, ठाकुर के प्रति कैसे प्रेम को जागृत रखना है, उनका हर कथन हर वाक्य ठाकुर को ही लेके होता था। कहे कि जानते हो ठाकुर को बढ़िया बढ़िया साड़ी जरूर देना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, गहना देना चाहिए, ताकि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे प्रति खुश हो और खुश होकर के तुमको ठाकुर के पथ पर चलने में निरंतर प्रेरणा देते रहे। श्री श्री दादा जानते हैं कि सांसारिक जगत में, भौतिक जगत में, मेटेरियलिस्टिक एज में मटेरियल का इस्तेमाल अगर ठाकुर के लिए है, ठाकुर के श्रीमुख से तो निकला हुआ बात है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ठाकुर कहते थे मदरियल वर्ल्ड, कि ये मदरियल वर्ल्ड को अगर पिता के साथ युक्त कर दिया जाए, इस मैटर को परम पिता के साथ युक्त कर दिया जाए, तो इस मैटर का भी हम लोग एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ठाकुर कहते ना धनी बनो छति रहे, दीन हम दाता बनो। कितना एक डिवाइन डिक्टेशन है हम लोग के लिए। तो ही शिष्य दादा कहते हैं कि बहू को साड़ी दो, गहना दो, सब कुछ दो, ताकि बहू खुश होकर के आनंद फुर्ती कर करके तुमको ठाकुर के पथ पर प्रेरित करते रहे। शिष्य दादा का एकमात्र कहना था कि तुम जो भी करो क्यों नहीं करो,
इष्ट में यदि स्वार्थ तेरा उनसे ही करता प्यार, हर कर्मों के मध्य में उनका ही स्वार्थ उजियार। ठाकुर के प्रति भालोबासा जिसे जागृत हो जाए, जिसे बढ़ जाए, वो सारे कर्मों को उसी इंटेंशन के साथ करना चाहिए। श्री दादा का वो क्लियर कट मैसेज था। श्री दादा बैठे हुए हैं, अब घटनाएं बहुत सारी है, क्योंकि आज टॉपिक दादा के लेकर के है तो उन्हीं के पर फोकस करूंगा। श्री दादा बैठे हुए हैं और दादा हम लोग से बातचीत चल रही है। अचानक एक बहुत गरीब टाइप का व्यक्ति, उसका कुर्ता फटा हुआ है, पैजामा फटा हुआ है, अखबार में कुछ लपेटे हुए हैं पेपर में। श्री दादा बोलते की रे, वहां त्रिपाठी दा थे, निवेदन वो वही करते थे। तो दादा बोलते की रे किए नीचे। तो त्रिपाठी दा पूछते हैं उस लड़के से कि बापा कैनो एशियन। वो दादा बोल रहे हैं कि माँ हमारी कुछ आपके लिए कुछ भेजी है, माँ हमारी गत हो गई है, माँ हमारी अभी नहीं रही, लेकिन आपके लिए कुछ भेजी है। तो आचार्य दादा बोलते हैं क्या लेके आया है, क्या लेके आया है। तो वो व्यक्ति जो गरीब टाइप का था, वो बोले कि मैं उनका पुत्र हूं और माँ की अंतिम इच्छा थी कि वो कुछ पैसा रखी है, वो आज आपके लिए रखी है, आपके काम के लिए रखी है, तो आप ही के लिए मैं लेकर के आया हूं। आप सोचिए वो व्यक्ति गरीब है, पैजामा फटा हुआ है, लेकिन पेपर में वो माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आया है और वो आचार्य देव को देने के लिए आया है। आचार्य देव दादा बोलते हैं कोतो टाका। अब हम लोग वहां बैठे हुए हैं, हम लोग पेपर में लपेट करके सोच नहीं सकते हैं उस व्यक्ति को देख करके कि ये व्यक्ति उस पेपर में इतना रुपया ला सकता है। पैसा तो बैग में, मनी बैग में, पर्स में, थैला में, लेकिन उसके पास थैला का भी पैसा नहीं था। सोचिए, बैग का भी पैसा नहीं था। वो आदमी पेपर में 8 लाख रुपया लपेट करके लाया था, 8 लाख। आचार्य दादा मुस्कुराए, बोले ठीक है रखो। तो वो व्यक्ति कह रहा बार बार कि नहीं, मेरी माँ बोली है कि आचार्य दादा के व्यवहार में ये पैसा लगना चाहिए। अब देखिए आचार्य देव दादा का आचरण, ठाकुर बोले कि जब ठाकुर जिनमें जीवंत मूर्त होते हैं, जिनके आचरण में उस आचरण युक्त व्यक्ति के संग करते करते मनुष्य ईश्वर लाभ कर सकता है। और आचार्य देव दादा का वो आचरण हम लोग बैठे बैठे देख रहे हैं लाइव। आचार्य देव दादा बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है रुकिए, बाबा आएगा ना, बाबा आएगा, बाबा जा बोलबे ताई हबे। अच्छा दादा बोले बाबा जा बोलबे ताई हबे। देखो व्यक्ति बार बार कर नहीं आपका व्यवहार कर दिया हुआ है। अभी उनका आचरण देखिए आचार्य दादा कि बाबा आचरण सब बोलबे। पुण्य आचार्य देव बाबा दा जब वहां से जहां बैठते हैं वहां से उठ करके नित्य दिन की भांति परम पूज्यपाद श्री दादा को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके दादा मुस्कुराते बोलते हैं बाबा देख 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 ওই লোকটা না তার মা গত হয়েছে, মার ইচ্ছা পূর্ণ করতে গিয়ে মা কিছু টাকা আমার জন্য পাঠিয়েছে। উনি বাবাদা বলতে কত, বলে 8 লাখ। দাদা বলতে বাবাই তুই যা বলবি তাই হবে, তুই बोल যা বলবি তাই হবে। अब देखिए आज हम लोग वर्तमान आचार्य के रूप में बाबादा को पाए हैं। ये पिता पुत्र का लीला चल रहा है और इस लीला का एक भाव अगर आचरण देखेंगे तो पुण्य बाबादा का जो आचरण को भी देखेंगे। आज हम आचार्य के रूप में उनको पाए हैं और उनके साथ अगर हम चलेंगे तो उस साधना में हम लोग सफल गंतव्य की ओर बढ़ते जाएंगे। पुण्य बाबादा कहते हैं बाबा এই টাকাটা না হসপিটালে যদি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট কিনা যায় তাহলে সেই ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে কত মানুষের যে মঙ্গল হবে, কত মানুষের যে ভালোবাসা বাড়বে, কত মানুষের জীবন পাবে, সে সঠিক কাজে লাগবে। अब देखिए दादा का बाबादा के ऊपर ये बात थोपना और बाबादा का आचरण
कि इस पैसे का, माँ के पैसे का जितना कि जितने लोगों के जीवन में लगेगा उतना ही मंगल उस माँ का होगा। और आचार्य दादा के श्रीमुख से वो निकली बात, उस पैसे का हॉस्पिटल में एक मशीन खरीदा गया और उस मशीन से लाखों लाखों रोगी का इलाज किया गया। देखिए श्री दादा स्पष्ट रूप से अपने आचरण में बता रहे हैं कि कैसे उस पैसे का मंगल के रूप में कैसे उस माँ के जीवन के लिए, उस बच्चे के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके, ये श्री दादा भली भांति हम लोग को इशारा करके बता दें। कभी भी अपने अपने लिए, अपने काम के लिए कभी आचार्य दादा कभी कुछ नहीं मांगते, सबके मंगल के लिए दिन रात यत्नवान रहते थे। और ठाकुर कहते थे ना कि जो छल बल कौशल थे सभी के मंगल में यत्नवान रहते हैं, उन्हीं का अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी हो। आज श्री दादा हमारे बीच उस आचार्य पूज्य बाबा दा को हम लोग के बीच दया करके इस ठाकुर के पथ पर चलने के लिए जो दायित्व दे के गए हैं, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हम लोग प्रति मुहूर्त प्रवृत्तिमुखी चरण की ओर की झोंक जो होता है उससे रुकावट पाने का एक माध्यम मिला हुआ है। नहीं तो कब एक प्रवृत्ति हमको टान करके लेकर चला जाएगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आचार्य देव शिष्य दादा एक बार सत्संग में आसाम में उत्सव के समय में हम लोग बैठे हुए थे और श्री दादा से गपशप चल रहा था। उस समय आसाम के मुख्यमंत्री बरदोलोई जो थे, उनके आगमन की सूचना हुई और दादा बैठे हुए हैं सामने, उनका दोनों पादुका रखा हुआ है। पादुका जो उनका जो ठाकुर वो दादा जो जूता पहनते थे, देखिए उनका आचरण क्या देखने योग्य है। हम लोग सब बैठे हुए, अचानक दादा बोलते हैं, ऐ जूतोटा আমার খাটের ভিতর বেঁধে রেখে দে তো, এই জুতোটা খাটের ভিতর রাখ। अब हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि जूतोटा क्यों खाटेर ভিতর रखबें। दादा तो भाई उतरेंगे तो जूता पहन के ही जाएंगे, लेकिन उसमें हमारे गौड़ भाई थे और पवित्र दास, दादा की इच्छा थी जूता को उस दादा का जो खाट है उसके नीचे अंदर डाल दिया ताकि दिखाई नहीं पड़े। जानते हैं क्यों? एक विशिष्ट व्यक्ति मुख्यमंत्री आसाम के, उस समय उनका आगमन होने वाला था और जब उनका आगमन हुआ दादा उठ के खड़े हुए, उनको रिसीव किए, वो भी बैठ के प्रणाम किए, फिर दादा से बात हुई। फिर वो मुख्यमंत्री जब चले गए तो आचार्य दादा फिर बोले जूता पवित्र दास जूता बाहर निकालो। हम लोग अपने घर में हर समय, हमारे घर में सीढ़ी घर में कभी जूता जहां तहां रखा रहता है, कभी कोई ऑड सिचुएशन बना रहता है, बहुत समय में नजर नहीं जाता। लेकिन आचार्य दादा का वो आचरण देख करके प्रति मुहूर्त मन में जागृति रहती है कि घर के सामने कोई ऐसा चीज न रखें कि कब कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो फिर इस तरीके का ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाए। मैं चैम्बर में बैठा रहता हूँ, मैं अचानक मैं खिड़की से देखता हूँ दादा मेरे पूरे घर में घूम रहे हैं बिना कुछ बताए हुए, कुछ भी नहीं बताए हुए। मैं बोला कि दादा इसमें, और देखते दादा घूम रहे हैं तो बोले आगे, हम बोले कि चैम्बर में कुर्सी बिठा कर नहीं तो रोगी देखिए तो रोगी देखार समय डिस्टर्ब भावे। अब देखिए से दादा हमारे बहुत कलीग लोग आते हैं, बहुत विशिष्ट लोग आते हैं, वो लोग ये समझ ये महसूस नहीं करते हैं कि मधुबदा भी कोई मरीज देख रहे हैं, थोड़ा वेट करके हम जाएं। और फिर से दादा मेरे चैम्बर में आए हुए हैं, जान रहे हम रोगी देख रहे हैं, हमको बगैर बताए हुए मेरे घर में घूम रहा, मेरा नजर पड़ता है तो मैं प्रणाम कर दया करके बहुत आग्रह से फिर बुलाता हूँ, नहीं तुम रोगी देख रहे हो, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये सब जो बातें हैं ये आज स्थिति में आज ग्रथित है। आज उन्हीं की दया है, उन्हीं की करुणा है कि आज श्री दादा सशरीर नहीं है, लेकिन वर्तमान आचार्य ने बाबा ने निरंतर उनका एक झलक, उनका एहसास हमेशा वो हमें हमारे बीच वो जीवंत रहेगा। और मैं एक छोटी सी घटना के बात को विराम दूंगा कि जीवन में अगर ये आचार्य, ये नॉकिंग, ये लिविंग आइडियल
अगर आपके जीवन में नहीं होंगे तो ठाकुर जी का ग्रंथ है, आलोचना प्रसंग है, सत्संग सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर की जो त्रुटि का जो उफान मारेगा, जब प्रवृत्ति जब उछाल मारेगा, उस समय उसको अगर आप उस संग में नहीं जाएंगे, उस प्रेमी के संग में नहीं जाएंगे, उस आचार्य के संग में नहीं जाएंगे, तो बहुत सारे चीजों का जो जो नियंत्रण है उसमें बाधा पहुंचेगा। हमारी माँ बीमार पड़ी थी, मेरी माँ बीमार पड़ी है, एकदम का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, और श्री दादा मेरी माँ के प्राण भिक्षा मांग रहे हैं हमारे डॉक्टर वृंद से। उस समय डॉक्टर तपन माटिया, डॉक्टर हेमंत, दुर्गापुर मिशन ले जाने की बात है, और दादा के पास मैं प्रणाम करके निवेदन करने के लिए गया हूं। दादा कह रहे हैं तपन माटिया को, हेमंत भाई को, कि देखो मधुप की माँ को किसी भी हालत में बचाना है, मधुप बगैर माँ के बगैर नहीं रह सकता है। अब देखिए माँ तो मेरी है, लेकिन मेरे अंदर का जो 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 पीड़ा है, दादा कैसे उसको उन लोग से बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि माँ को बचाना है, और हमको बोल रहे हैं कि देखो इस बार कोई ऐसा भूल नहीं करना कि माँ को पुनः इस तरह से बीमार होना पड़े। और दादा बोले तपन भाई को, हेमंत भाई को, कि दुर्गापुर के जितने डॉक्टर हैं सबको कहना कि मधुप की माँ को बचना चाहिए, और मेरे तरफ से हजार हजार थैंक यू, मेरे तरफ से हजार हजार थैंक यू सब डॉक्टरों को कहना। ये कौन श्रेही प्रेमी पुरुष है जो आपके लिए सोचता है? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता हूं, उनकी इच्छा को वास्तवित करने के लिए जीवन में कोई जो आहुति देना चाहिए वो नहीं कर पाता हूं। लेकिन आज उसी आचार्य देव के इस पारलौकिक गमन के उपलक्ष्य में हमारे आचार्य देव बाबाजा के माध्यम से पूरे गांव के अंदर उस पारलौकिक गमन के उपलक्ष्य पर सभी गांव के लोगों को बीच जाकर के एक एक प्रसाद का वितरण किया गया। मैं भी था उस वितरण में, और सारे गांववासी का आंख नम था, श्रद्धा से भरा हुआ था। और पूरे डॉक्टर समाज में जो आचार्य देव दादा के सेवा में लगे थे, सभी के घर में जाकर के वर्तमान आचार्य देव बाबादा के माध्यम से एक डाला पे भेजा गया, और सभी डॉक्टर लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। इस ऐसा कभी किसी भी जीवन में कहीं भी किसी परिस्थिति में हम लोग के ऊपर इतना नजर नहीं दिया गया जितना आज वर्तमान में। हम लोग क्या किए, दादा का एग्जैक्ट एक सेवा किए, क्या इतना इतना सोच उन लोग का बड़ा है कि हम लोग को छोटा के सेवा के मूल्य में आज हम लोग इतना बड़ा डाला दे रहे हैं। आज इस पारलौकिक गमन के उपलक्ष्य में ऑनलाइन सत्संग हुआ, सभी लोग लाखों लाखों लोग पूरे विश्व में उस सत्संग का आनंद लिए, और उस आनंद के बीच एक ही मैसेज हमारे वर्तमान आचार्य बाबाजा के श्रीमुख से निकला कि शोकाकुल अवस्था में हमको घर नहीं लौटना है, हमको आकर्षण सत्ता सच्चिदानंदमय का आकर्षण लेकर लौटना है। शोक में विकर्षण होता है, और पुण्य बाबाजा का जो आशीर्वाद है कि 1919 में 2019 में जो उपयोजना केंद्र का जो स्टेटस था पुनः उसको बहाल किया जाए, क्योंकि शिष्य दादा की वही इच्छा थी, और वही इच्छा के साथ 3.5 कोटि का दीक्षा अगर हम लोग वास्तविक उस यज्ञ में युक्त हो जाते हैं तो शिष्य दादा के प्रति जो सच्चा श्रद्धांजलि है वही वास्तव श्रद्धांजलि होगा। मैं आज इस ऑनलाइन उड़ीसा सत्संग में भुवनेश्वर से युक्त जितने भक्त मंडली है प्रत्येक का मंगल प्रार्थना करते हुए परमदास श्री ठाकुर के पास मैं अपनी बातों को विराम देते हुए यहीं पर आप लोग से विदा लेना चाहूंगा।